تو لوگ آئے اس مختار نام میں تھوڑا بیچ میں رکا ہوتا، ممی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، کھانسی زکام بخار ہو تو گیا تھا، ابھی تھوڑا دلی میں سردی آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مختار نام. انہیں زندان کیوں نہیں لے ہم نے گئے؟ چاہا کہ ان لوگوں کا تماشا دیکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گرفتاری ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اب تک آزاد ہے. لوگوں کی ابرو سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کی نظروں سے انہیں دور کرو. جی امیر. آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں. شاید اپنے بھتیجے کی مدد سے آپ لوگوں کی ضرورت کو چند دنوں کے لیے حل کر سکوں. یہ میرے بھتیجے مختار ہیں. السلام علیکم اے مختار. وعلیکم السلام. بیٹھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو عبید کے بیٹے مختار کے بارے میں بہت کچھ سنا. مجھے فخر ہے آپ سے ملاقات پر. ممنون و مشکور ہوں. بیٹھیے. خدا رحمت نازل کرے گزشتگان پر. جیسے ہی دروازے سے اندر آئے ہو مجھے ایسا لگا کہ میرا بھائی ابو عبید آیا ہے. تمہیں پتا ہے اس لباس میں کس قدر اس کی شباہت رکھتے ہو. مرحبا میری جان، تم نے میری عزت بڑھا دی. تمہاری خبریں ایک ایک باریکی کے ساتھ مجھے مل یہ رہی آواز تھی. سنی سنی لگ رہی ہے نا. یہ کیا ضرب کاری لگایا ہے تم نے. میں نے سنا ہے کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں. اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں. مرحبا میری جان. ہم ان واقعات سے پہلے جو بھی کچھ اپنے انبار حکومت میں رکھتے تھے وہ امام کے حکم پر بیچ دیا. اس وقت حکومت کے موجودہ انبار میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے جیسے ہیں، صاف اور پاک. بہرحال میں مدائن کے مالدار باشندوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوں. آپ لوگ ثابت چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے قافلے کے ساتھ کچھ ضروری اشیاء اور کھانا وغیرہ بھجوا دوں. خدا آپ کی عزت و جاہ و مقام میں اضافہ فرمائے. اگر امام کے پاس آپ جیسے 10 افراد ہوتے افراد کیا ہوتا ہے؟ تو آج وہ مصیبت میں نہ آمین. ہوتے. مگر مشیت الہی کا کیا ہوگا بھائی؟ شاید اس مصیبت میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہو جس سے ہم بے خبر رہیں. آج مثال امام مجتبی رسول خدا کی کل کی حکایت کے جیسی ہے جو احد میں ہوئی. احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے. بالکل صحیح. چلنے کی اجازت دیں گے؟ خدا کی پناہ میں محفوظ رہیے آپ سب. جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے. آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی. ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کے ہمراہ تلوار چلائیں. جو خدا چاہے سردار. پناہ حق میں. خدا حافظ. خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے. سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو. دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں. اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ صابات کا ایک چکر لگا لو. لشکر عراق اپنی روح کھو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے. بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان. آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں. میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا. میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا.
इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका उजाला नहीं करना चाहते। नहीं चाहता नहीं, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम फरमारवाई और मामलात को संभालने में एक बेमिसाल महारत और कुदरत रखते हो। तुमने एक आधे दिन में मदाइन को तस्खीर कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हो कि इराक की एक निडाल फौज में दोबारा जान डाल दो? मैंने मदाइन को आधे दिन में फतह कर लिया क्योंकि मैं एक मुकम्मल इख्तियार रखता था, क्योंकि मैंने सरकूबी की सियासत से काम लिया। इमाम इस तरीके से मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके में मुमकिन है कि बेगुनाह लोगों की भी कुर्बानी हो जाए। रंगने वाला बहराम इसका एक नमूना है। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, मगर उसे बंद नहीं करता तो अरब और अजम का शोर खामोश नहीं होता। बहुत खूब, ये भी एक दलील है। मुझे उम्मीद है कि इमाम का मदाइन में रुकना ज्यादा तूलानी न हो। तुम्हें किस बात का गम है मुख्तार? मेरी खेती बाड़ी, मेरी रियाया के मामलात। रोटी खाने वाले लश्कर को चलाना छोटा मशगला नहीं। कियान, मुख्तार के एक अहम मशगलों में से एक तुम हो। इस शेर बहादुर को औरत, ज़राअत और रोटी पानी में कैद किया हुआ है तुम लोगों ने। कियान, मेरा अहम मशगला तुम हो? मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार। चुकंदर की तरह लाल क्यों हो गए? मरहबा इस हया, तवाज़ु और गैरत पर। इस किनाया से आपका मतलब क्या है? कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है। मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है। क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है क्या मेरा रियाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते मैं बहन समझ रहा था ना, बहन के। एक अजीब सा एहसास है कियान। जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला है, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं। एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। कट किया है कुछ? मरहबा मरहबा उम्मे साबिक, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने? कुछ कट हुआ है क्या? मेरी हुर्मत जहन्नुम में जाए। कुछ कट हुआ है? ये होती है मेहमान नवाजी है। तुम गुजू को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो? आए होगे रात को इनके घर पे और जनाब बाद में भी बहन ने मना कर दिया। मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। हमने कुछ मैं नहीं समझ किया। रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो। कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की। नहीं अबू इसहाक नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान।
उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है, मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिन्स में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा, तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। इसको नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था, उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैदे सकफी की बेटी, जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। सही बात। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम अगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल न करते। ये सोच रहे हो तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर किसी अमीर बहुत बड़े किसी कौम नजाद और कबीले से नहीं है नाफहम लड़की, हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इस कीने और बुग़्ज़ के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी। उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया। मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्मा तुम्हारी वहशियाना खुल को खूब को बदल सकता है। आज के बाद से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हीं तैग व तबर की जबान में जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो। अब तक भी यही था, तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना कि भाई। चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे। कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है। मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार। जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए। एक वहमे इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती। तुम तो नाइंसाफ नहीं थे मुख्तार। उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो। इंतखाब करे मगर पिसरे सादिया भी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बाइस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्यालात तुम्हारे जहन में आते।
मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और पागल लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार बहुत जो मुश्किल मैदानी जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। ये नंगवार काफी है कि उम्र साद एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, ahsanat। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो, हरामजादे! ज्यादा मत चिल्लाओ मर्द मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाब में रखो इसे। मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवा मर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है, सिर्फ कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम पर आसिफ का सुना तो वो मुबालगा था। जरबी, जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो, मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मानूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जबरदस्ती। सिर्फ तो मुख्तार को ठंडा कर सकती मैं हूँ। डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ न बनो मुख्तार, ये हम क्या इस हो मौजू रहा को है? मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आली उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले नामर्द, अपना दिफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सरब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूँ। आज की तो उनका खुद का दोस्त, ठीक है, खुद का दोस्त जो उन्होंने रिश्ता मांगने आया था, उनकी बहन का वो सीन काट दिया था। है, हमने नहीं काटा वो सीन। ये पता नहीं उनकी बहन ने वो क्या बदतमीजी करी और क्या बोला, और उनके दोस्त ने क्या बदतमीजी करी क्या बोला वो हमको पता नहीं है। जब अंदर आए, ठीक है, तो उस समय जो उनकी बहन ने बोला कि मैं नहीं करना चाहती, ठीक है, वो उस हमको इतना समझ में नहीं आया क्यों किसी और से करना चाहती है, किसी बहुत अमीर से करना चाहती है, किससे करना चाहती है, लेकिन उन्होंने बोला मैं नहीं करना चाहती। तो लेकिन वो जो हजरत मुख्तार है वो इतना नहीं होना चाहिए था उनको गुस्सा, तो क्योंकि इस्लाम में जो है वो तो औरत की भी तो मानी जाती है ना कि वो अगर नहीं करना चाहती तो ना करे। अपनी बहन को भी बहुत गुस्सा हो गया वो। हाँ, बहन के बारे में बहुत कुछ सामने बोला, और वाले ये बोला को उनकी बहन ने बोला कि तुम तो बचपन से ही मुझको नौकरानी समझते हो और अभी भी मेरे को नौकरानी समझ रहे हो, ये वो है, तो मैं कुछ ऐसी थोड़ी ना हूँ कि तुम अपने दोस्त को बेच दोगे, वो कर दोगे, वो तो बहुत कुछ चीजें हुई। और बाहर आके अब उनके बीच में पता नहीं क्या बात हुई कि अब निकाला, हाँ। लड़ाई हो रही है उनकी, ठीक है।
تو یہ ان کے کیا اندر کچھ پلاننگ تھی کہ بدلہ لے گے شادی کر کے وہ سب کرے گا؟ اب ان سے منہ سے کیا نکلا وہ سب بتانا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ اسلام میں تو عورت کی منظوری مانگی جاتی ہے نا، اور اگر وہ منع کر رہے ہیں تو اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بات بھی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا نا، بھی کوئی آگے کہہ دے میں تیری بہن کو لے جاؤں گا، یا تو رشتہ کرو نہیں تو میں تیری بہن کو لے جاؤں گا. یہ تو غلط ہے نا. عورت کی بھی کچھ اپنی مرضی ہوتی ہے، منظوری ہوتی ہے. تو ویڈیو صحیح لگی، بہت اچھی تھی ویڈیو. اور کچھ باتیں جو بہت ضروری ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ آپ لوگ کومنٹ میں بتانا. اور ویڈیو بہت اچھی تھی. تو سبسکرائب کرنا ہے، نیا چینل ہے، ٹھیک ہے، اس ہاں، کو سبسکرائب کرنا. سبسکرائب کرے، لائک کرے، کومنٹ کرے، بھر بھر کے کرے. بائے.